So the next type of compounds, next topic in IUPAC nomenclature is those compounds that contain multiple bonds and functional group as well. So now we will be taking up those examples with the rules in which there will be double bond, triple bond, and a functional group will also be present. So what are the rules for that? So again, the rules are, one first rule is the same, that you have to select the longest possible chain. But this chain might not be long. I mean, the longest among other chain, because this longest possible chain must include the functional group as well as the double bond or triple bond. So select the longest chain that contains multiple bonds as well as functional group and functional group. So it must include the functional group and the multiple bonds. So it might not be the longest one. For example, CH3, CH2, not CH2, CH3C. Okay, yes, CH2C, CH2OH, double bond, CH2. So if in this example, you can see that there is one functional group, that is alcohol, and there is carbon-carbon double bond. Now you have to select that chain which contains both of these. So this will be this chain, which consists of 3 carbon atoms. Now there is one possibility of another chain, which is this one. This one. Now this chain contains 4 carbon atoms. This chain, it contains 4 carbon atoms, but it does not include the double bond. Carbon-carbon double bond. So both the carbon atoms of double bond must be there in the longest possible chain. So we will not choose it as that chain, main chain. So this 3 carbon chain is our main chain, right? Next important point to remember is, after you have selected the chain, now you have to number the chain according to the preferences. So here no lowest set of locants or sum rule will be applied. So number the chain according to preferences. Now, what do you mean by preferences? So by preferences, I mean, see, in this case, we have functional group, double bond. We might also have triple bond, and then some side chains like alkyl groups, or as I told, chlorine, I mean halogens, they are also treated as substituents. Nitro group is also treated as substituent. So these must be there. So the order of preferences is, functional group is given the first preference. Functional group. So numbering ऐसे करनी है कि functional group should get the first number, followed by double bond if present, followed by triple bond. अगर double भी है, triple bond भी है, तो double bond को पहला number देना है, फिर triple bond, and followed by other substituents. So substituents will be given least priority. There is no need of numbering the way in the way as we did using set of locants or sum rule. So I'll give you an example. So now again this thing, CH3, CH2, C double bond, CH2, CH2OH. So इसकी नंबरिंग हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे इसको 1, 2 and 3. So सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप आएगा एंड हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा इसको. Now in the same way, another example, CH3, CH3, double bond, CH, C double bond O, that this compound contains a ketone, CH3, CH2, CH3. So numbering to give this as the minimum position. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Because if I do it like this, 1, 2, 3, 4, 5, this carbon that contains the ketone groups,
gets the fifth number. So this is not the right order, this is the right order. So these are some tips that you have to remember, very basic ones while naming such compounds. So now let us name them, कि कैसे लिखेंगे भी और अब कैसे इनको properly हम name करते हैं, how to write the names. So let us start with the first example that I took up, this one, CH3, CH2, C double bond, CH2, CH2OH. So this is the longest possible chain as I told you. So ये करने के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने 1 2 3 ऐसे हमने करना है. नंबर 2 पे लगा है हमारा इथाइल ग्रुप. जैसे हम लिखते हैं इथाइल यानी कि प्रीफिक्स को आगे वैसे ही लिखेंगे 2 इथाइल. 3 कार्बन चेन प्रोप. सेकेंड कार्बन पे आपका है, सेकेंड कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो 2 prop 2 इन 1 होल एंड इन का ई हम पीछे से कैंसिल कर देंगे. सो इनॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 पे ऑल है और इन 1 ऑल. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. चलिए अब वो वाले का नेम लिख लेते हैं. CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड. अच्छा ओके, आई टुक एन एग्जांपल जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स है. तो अभी के लिए ऐसे करते हैं, इसको छोड़ देते हैं. अभी के लिए हम लेते हैं सिंगल बॉन्ड वाले. मैं फिर वो अलग से लूंगी. आई टेक अप दोज एग्जांपल्स जिसमें डबल बॉन्ड 2 बार आएगा, वो भी ले लेंगे. पहले ये वाले कर लेते हैं. CH2 CH CH3 CH2 CH2. So this is the longest possible chain. As we can see, numbering will be done from this side. 5 6 7 8. So 2 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है. So 2 6 डाई मिथाइल. 8 कार्बन की चेन ऑक्ट. 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन एंड फोर्थ पे आपका क्या है, कीटोन ग्रुप है तो 4 ओन. So this is the name of this compound. Again taking up another example. Now this is quite simple one. 1 2 3 4. So यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है. सो स्ट्रेट अवे आपका पहले लगेगा वर्ड रूट ब्यूट 2 इन 1 डैश ऑन. ठीक है. नाउ CH2 Cl CH double bond CHCOOH. Now this is again, I told you chloro halogens are considered as substituent. So ये हमने previous videos में अपने पढ़ा था. 1 2 3 4. फोर्थ पे लगा है क्लोरो. सो 4 क्लोरो. 4 कार्बन की चेन, क्योंकि हमें उस कार्बन को जरूर इंक्लूड करना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है. सो इट मेक्स इट 4 कार्बन चेन ब्यूट 2 इन 1 ओइक acid. Okay, next example. CH2 double bond CH3 CO CH3. So this is the longest possible chain that as it has to include carbon carbon double bond and the functional group. The numbering would start from here to give ketone the minimum number. So this is 4 carbon chain and third पे लगा है हमारा substituent. तो 3 dash मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 ओन. तो जैसे कि हम अपने जो सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूट हमको कैसे लगाते हैं, एन इन आइन को पहले लगाते हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स को बाद में लगाते हैं, बिकॉज दे बिकम द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. सो जैसे मैंने यहाँ लगाया, इन पहले लगाएंगे सफिक्स में एंड ओन लगाएंगे हम बाद में. चलिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं. COOH अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड. CH3 CH2 नॉट CH2 CH बनेगा. 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, कार्बन के ज्यादा हो गए यहाँ पे. यहाँ पे आएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. नाउ अगेन इसमें आगे ज्यादा ये ले लेते हैं एग्जाम्पल. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा CH. सो अगेन इसको प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन
2 पे मिथाइल, सो 2 डैश मिथाइल हेक्स, 5 पे क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड, सो आइन एंड 1 ओइक एसिड। ठीक है, for more examples, CH3CH, CH double bond CH, C double bond ONH. Now this is an amide group, this is an amide group, so longest possible chain जो दिख रही है वही है, and numbering यहाँ से start होगी 1 2 3 4 5, फोर्थ पे लगा है हमारा मिथाइल, so 4 मिथाइल डबल बॉन्ड है, और आपका 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, डबल बॉन्ड का कार्बन सेकंड से स्टार्ट है, 2 इन 1 डैश अमाइड, अगेन इन का ई हटा दिया बैक से बिकॉज अमाइड इज अ वोवेल। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे ब्रोमीन double bond CH CHO. Now this is an aldehyde group, 1 2 3 4, थर्ड पे लगा आपका ब्रोमीन, सो 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1 अल, राइट। नाउ CH2 double bond CHCN, now CN is a nitrile group, right, so ये भी आपका इंक्लूड होगा इसमें, ये ऐसे कार्बन इसका इंक्लूड होता है आपके उसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में, सो नो साइड चेन, सो सीधा आपका वर्ड रूट आ जाएगा प्रोप, 2 इन का ई रहेगा 1 नाइट्राइल, बिकॉज N इज नॉट अ वोवेल, नाइट्राइल के लिए सफिक्स नाइट्राइल लगता है, तो N इज नॉट अ वोवेल, इसलिए इन का ई यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज हाउ वी नेम कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज डबल बॉन्ड। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो, CH3C Cl CH CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ओके, just a second, so OH CH3, okay, so this contains double as well as triple bond। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है अपने हाइड्रोक्सिल को, और आई मीन अल्कोहल को, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, 7 पे क्लोरीन है, सो 7 क्लोरो, 8 कार्बन की चेन है ऑक्ट, फर्स्ट लिखते हैं हम इन, 2 इन, फिर लिखते हैं हम आइन, 3 आइन, और सेकंड पे है ओल, 2 ओल। मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे, राइट, सो दिस इज 2 क्लोरो, सॉरी 7 क्लोरो ऑक्ट, 5 इन, 3 आइन, 2 ओल। जब इन और आइन दोनों प्रेजेंट हो तो आइन बाद में लिखा जाता है, इन पहले लिखा जाता है, एंड सबसे लास्ट में हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज हाउ वी नेम दीज कंपाउंड्स। अब एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। इफ सेम, ये हमने अल्केन्स के केस में भी किया था, फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा हो लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल, 1 से ज्यादा हो लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। इफ सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ट्वाइस along with a multiple bond, पहले हमने सिंगल बॉन्ड के साथ किया था कार्बन कार्बन, अब मल्टीपल बॉन्ड के साथ। सो फॉर एग्जांपल CHO CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, देखिए बाकी रूल तो सब सेम ही रहेंगे इसमें, लेकिन नंबरिंग करनी पड़ेगी 3
4 5 वैसे ही, ठीक है। इधर वे नंबर करो, दोनों में से एक एल्डिहाइड को 5th नंबर मिलेगा, और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को 2 यहाँ पे कर रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन इधर से कर रहे हैं अगर हम तो 3 नंबर मिल रहा है, ये देखिए। इसलिए मैंने ये प्रेफर किया ताकि इसको जो है सेकंड नंबर मिले, नहीं तो इसको 3rd नंबर मिल रहा था, ये यहाँ 3rd नंबर मिल रहा था यहाँ पे। सो ऊपर वाला ऑर्डर प्रेफरेबल होगा। अब लिखना कैसे है, 5 कार्बन चेन पेंट डैश 2 पे अल्कीन, सो इन, राइट, एंड 1 5 दो वो हैं डायल, और डी कंसीडर करेंगे इसलिए इन के पीछे का इन नहीं कट करेंगे, डी वॉवल नहीं है इसलिए इन रहेगा। जो हमने पहले की थी उसमें पेंटा ब्यूटा हेक्सा ऐसे होता था, जब हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग की थी। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, पेंट 2 इन 1 5 डायल, ठीक है। और एग्जांपल एक कर लेते हैं, COOH C triple bond CCOOH. Now it contains 2 carboxylic acid and either way I number, कार्बन के अल्काइन के कार्बन को भी सेकेंड नंबर मिलता है, और दोनों में से एक कार्बोक्सिल को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, एक को 4th मिलेगी। सो दिस विल बी ब्यूट 2 डैश आइन 1 4 not 3 1 4 dioic acid. In the same way, one more example, nitrile का ले लेते हैं, CH double bond CHCN. So 4 कार्बन 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 4 डाइनाइट्राइल। सो ऐसे हम नेम करते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनमें आपके फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार, आई मीन 2 बार आते हैं, नॉट 3 वाला केस अलग है, 2 बार आते हैं, एंड आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो आपने नंबरिंग करनी है वैसे ही करनी है कि जिससे आपके फंक्शनल ग्रुप को प्लस डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि बोथ वे से सेम मिल रहा है, तो कोई भी वे चूज कर लीजिए, जैसे इन दोनों में बोथ वे से सिमिलर मिल रहा था। इस वाले केस में अगर मैं ऐसे कर रही थी तो डबल बॉन्ड को कम लोअर नंबर मिल रहा था, जब मैं ऐसे कर रही थी, नहीं सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, जब मैं ऐसे कर रही थी राइट टू लेफ्ट तो इसको कम नंबर मिल रहा था, जब मैं लेफ्ट टू राइट करी थी तो ज्यादा नंबर मिल रहा था। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड अबव 1 रादर देन द नीचे वाला 1। बट बाकी सब सेम है, रूल सेम है नेमिंग और नंबरिंग के। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि क्योंकि डायल डायोइक डाइनाइट्राइल आ गया तो जो इनके सफिक्स थे इन आइन, इनके पीछे का जो ई था वो कटेगा नहीं, जैसे पहले हम डिलीट कर देते थे, यहाँ पे नहीं होगा। सो दिस वाज अबाउट द कंपाउंड्स containing the functional group as well as double or triple bond. Now the next video will include more than one functional group, naming of organic compounds containing more than one different type of functional groups. Say for example alcohol भी होगा, एल्डिहाइड भी होगा, एल्डिहाइड होगा तो कीटोन होगा, या फिर एल्डिहाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो वो एग्जांपल्स हम करेंगे अपने, उनके रूल्स एंड एग्जांपल्स वी विल बी टेकिंग अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो।